Okay, so Deepak, let's proceed ahead with your HR snap for NMDC. I want you to introduce yourself here. Thank you, sir. My name is Deepak Kumar. I belong to Pandit Deen Dayal Upadhyaya Nagar, Uttar Pradesh, which was formerly known as Mughalsara. My father is a government servant and my mother is a homemaker. We are four brothers. I graduated in electrical engineering from Rajki Engineering College, Bijnor, in 2019. And since then, I was preparing for GATE exam. If I talk about my hobby, I like to jog and run, and thus I like to keep myself fit. And my interest is in listening Sher Shairi. Okay, Deepak, tell me something about Mughal Sarai and why the name was changed. Sir, actually, Mughal Sarai was earlier known as Mughal Sarai because in the recent times, in the Mughals period, जब सर वो नॉर्थ इंडिया से जब साउथ इंडिया की तरफ जब वो अपने ट्रूप्स लेके मुगल्स आते थे तो दे कुछ कुछ जगहों पे वो ठहरते एंड फॉर ऑल तो दे ट्राइड तो वहां से वो नाम पड़ा उसके सराय मतलब ठहरने का स्थान और मुगल्स वेयर द पीपल्स मुगल्स वेयर द जिनकी उस समय जिनकी राइम थी मतलब सर तो मुगल वहां पे ठहरते थे. You know what is Sarai? And sir, yes sir, सराय means ठहरने का स्थान. That is called motel. जैसे कोई किसी जर्नी पे जा रहा है किसी लॉन्ग जर्नी पे जा रहा है तो वो उस जगह ठहरते थे टू रिफ्रेश देमसेल्फ. तो और सर मुगल सराय का नाम इसलिए चेंज हुआ बिकॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट आरएसएस लीडर्स पंडित दीनदयाल उपाध्याय was found dead at railway station. So in 2018 it was renamed as Pandit Deen Dayal Upadhyaya. And if I talk about Mughal Sarai, it also यहाँ पे सबसे बड़ा रेलवे का मार्शलिंग यार्ड which is 12.5 kilometers long and it is longest in Asia. Okay, Deepak, you know where is Grand Trunk Road? GT Road? Yes sir. Yes sir. GT Road was built by Sher Shah Suri. It extends from Jammu Kashmir to Kanyakumari. No. Maybe it goes from Calcutta to Peshawar. It is National Highway number 1. Yes, sir. You know from where to where National Highway number 1 goes? No sir. It's from Bengal, now Bangladesh, to Peshawar, Pakistan. And Sher Shah Suri was the person who actually created all these sarais and all. You know, this is the point. Now, can you tell me, Deepak, why you are interested in NMDC? Sir, first of all, the type of profile that is NMDC is offering is of my interest. Mhm. Sir, I think that since my graduation days, I have bent of creativity. So basically, pondering over and manipulating the concept of ideas, I found that I have management type of skills. And sir, NMDC being a very prestigious organization, I would like to join this organization and put my 100% efforts to it. But that creativity is not required in NMDC job. Where you will put creativity? It's not a research organization. It is a production organization, you know. Do you think we need creativity in that, Deepak?
Sir, creativity in the sense of like management type of skills. Uh, like I managed to things from my since my graduation days, which has proven for my academic background also. अच्छा, हर आदमी अलग टाइप का होता है, तो आपकी टीम में अलग अलग लोग हैं, उनको कैसे मैनेज करते हो आप? व्हाट आर द मैनेजमेंट ट्रिक्स यू यूज? Sir, first of all, I would like to talk to each one of them and try to know their mindset of going through in their mind. So I will try to मतलब सबको बताने की कोशिश करूंगा कि if you work in a team, you can have better you can have better results from personal as well as a team point of view. ओके दीपक, कैन यू टेल मी व्हाट आर द सम गुड मैनेजमेंट ट्रेट्स? जैसे आप बोल सकते हैं आई हैव गुड मैनेजमेंट ट्रेट्स, सो आई एम अ गुड मैनेजर. व्हाट आर दोज मैनेजमेंट ट्रेट्स? Sir, being as a good manager, he should have good communication skills. He should be a team worker, and if he has some team leading capabilities, that is like Sone pe Suhaga types, and he should try to take the whole team as a one, and सर वो मतलब जो जो भी चीज करे, he should like be मतलब he should give 100% of his work. Okay, you know, there is one management trait which is called to empathize with others or sympathize others. What is the meaning of that? Sir, being sympathy is very good. Like sometimes if employees task or fails to do the task very efficiently, his morale is down. Then being as a team leader or a team worker, one has to sympathize him, so that it's okay. You should do better next time. Don't be sad. So these are the something. If we boost the employees' morale, we can add something more to the organization in terms of value. Okay, can you tell me the difference between jogging and running? Yes, sir. The basic difference is we jog at a slight less pace in running, and secondly, so the amount of calorie burned, the in jogging less calorie is burned as compared to running. So why somebody will jog and not run? Sir, basically, if like jogging is something at a lesser pace, so if you want to jog at less pace, you can cover a lot of distance. तो Like कैलोरीज तो फिर तुम ज्यादा बर्न कर लोगे जॉगिंग में. no sir, like it depends on कि sir self if we see jogging, which is not in running. जिम जाते हो? No sir, only running. कभी जिम नहीं जाते गए? Sir, मतलब गया था, but I was not that much compared to gym. Okay, so वहाँ रनिंग कहाँ पे करते हैं जिम में? Sir, एक ट्रेडमिल होती है. ट्रेडमिल. Yes sir. उसमें जॉगिंग करते हैं कि रनिंग करते हैं? Sir, it depends. Sir, उसमें
ऑटोमेटिक सिस्टम्स रहते हैं, सो सर यू कैन कंट्रोल द पेस। ओके, सो लेट मी गिव यू फीडबैक का दीपक। आपने जॉगिंग मुंह से बोला है एंड रनिंग, तो जॉगिंग रनिंग का सारा डिफरेंस पूछेगा। जॉगिंग का फायदा, रनिंग का क्यों, जॉगिंग क्यों नहीं करनी है, रन क्यों करते हैं, जॉगिंग क्यों करते हैं, सब चीज, राइट। तो आपने बोला रनिंग के बाद आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है, जॉगिंग में वो सस्टेन करता है। और कई बार लोग ऐसे होते हैं कि जैसे वो एग्जॉस्ट नहीं होना चाहते, तो लॉन्ग टर्म में वो दौड़ना चाहते हैं जिससे ज्यादा सस्टेन कर सकें अपने आप को फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, जिससे ज्यादा मे बी ज्यादा कैलोरीज बर्न हो जाएं, एंड स्टिल यू हैव टू फाइंड द आंसर टू दैट। मुगल सराय के बारे में सब कुछ पढ़ो। मुगल सराय, मुगल क्यों और सराय क्यों, और सराय का नाम क्या। और मुगल सराय, जो सराय का नाम आता है शेरशाह सूरी के साथ आता है, और वो ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी मार्ग नेशनल हाईवे नंबर 1 के बेस पे आता है। थोड़ा उसके बारे में पढ़ो। क्रिएटिविटी वर्ड पता नहीं क्यों डाल दिया तुमने, एनएमडीसी की जॉब में क्रिएटिविटी कहाँ आ जाएगी, वो पता नहीं कहाँ से लेके आ गए तुम। और मैनेजमेंट ट्रेड्स, मैनेजमेंट मैनेजर की क्या ट्रेड्स होनी चाहिए, वो मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है, उसका ट्रेड्स देख भी लो कि मैनेजर के पास क्या क्या ट्रेड्स होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप मटेरियल मैनेजमेंट के लिए भी जा रहे हो, यस तो सर। मटेरियल मैनेजमेंट में वो पूछेगा तुमसे मैनेजमेंट ट्रेड्स बताओ क्या क्या है, कौन कौन से ट्रेड्स होने चाहिए, वो तुम्हें क्लियरली फ्लो नहीं कर रहा। ये सारे क्वेश्चंस लिखो और इनका आंसर ढूंढने की ट्राई करो। फाइन दीपक। ओके सर। सो कीप जोटिंग डाउन ऑल द क्वेश्चंस जो अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे। एंड सराय इज बेसिकली मोटल, जैसे एक होटल होता है वैसे एक मोटल भी होता है, MOTEL। रोड किनारे जो होटल होता है उसको मोटल बोलते हैं। तो पुराने टाइम का मोटल जो होता था वो सराय होती थी, पानी वानी का अरेंजमेंट होता था, फिर खाने पीने का भी थोड़ा हो जाता था। कुछ कुछ कोस दूर के बाद वो ट्रेवलर्स को, आपने सिल्क रूट का नाम सुना होगा, सिल्क रूट। यस सर। तो वो ट्रेवलर जाते थे, वो काफिले में ऊंट ऊंट में जाते थे सारे लोग, फिर वहां रुकते थे। ठग वग उनको, और जो गुंडे हैं उस टाइम के, वो उनको लूट ना लें, इसलिए सराय का अरेंजमेंट किया जाता था। थोड़ा पढ़ो उसके बारे में, राइट। ओके सर। ओके दीपक। सर वन मोर थिंग सर, आई वांटेड टू आस्क सर, जैसे कि सर प्रोफाइल मेरा सर मटेरियल मैनेजमेंट है, तो सर थोड़ा सर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लाइक आई एम मोर, मतलब सर ये GD की प्रिपरेशन हो ही रही है सर, HR की हो रही है, और सर मटेरियल मैनेजमेंट कर रही है सर। उसमें सर पता नहीं चल रहा है कि सर टेक्निकल में कितने डीप में पढ़े और क्या चीजें पढ़े। इलेक्ट्रिकल यस सर। पढ़ते रहो, जितना बेसिक बेसिक करते रहो, मॉक स्नैप लगाते रहो मैम के साथ, स्नैप लगाते रहो, मॉक लगाते रहो, डोंट वरी। बस प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। नॉलेज का नहीं होता है ये, आप ये समझ लो, नॉलेज से कभी नहीं होता है ये, इंटरव्यू नॉलेज से नहीं निकलता है, इंटरव्यू निकलता प्रैक्टिस से। जैसे भी HR के क्वेश्चन आप देख ही रहे हो यार, कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आदमी का दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है उस डायरेक्शन में। जैसे टेस्ट सीरीज है ना, टेस्ट सीरीज लगा के प्रैक्टिस हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, वैसे मॉक लगा के प्रैक्टिस हो जाती है। आड़ा टेढ़ा जैसा भी क्वेश्चन आएगा तुम हैंडल करना स्टार्ट कर दोगे। ये प्रैक्टिस से आता है दीपक, ये नॉलेज से नहीं आता। और सर जैसे मेरी इंटरेस्ट इन द एरिया ऑफ शेर व शायरी, तो सर इस पर क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, समथिंग लिटरेचर मैंने में आपसे डीप में तो सर। नहीं, मैंने आपसे पहले पूछा था इसका क्वेश्चन कि कोई शायर का नाम बता दो, कोई शायरी बता दो, कौन सी शेर व शायरी, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे। सर लिटरेचर में तो नहीं घुसेंगे। नहीं, बाकी मेंटली प्रिपेयर रहो कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो इनकार कर देना है, नॉर्मल है। तैयारी करो और बी ओके कॉन्फिडेंट, सर। नहीं आता तो इनकार कर दो। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट।